मात की ચોટીલા વાળી ચામુંડા માત કી હાથ હોય એની જય બોલાવાની છે। બોલો સતી માત કી। આજથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને ડર છે। આ લોકો તો અહીંયા બેઠા છે પણ અત્યારે ભાજપ વાળા કોઈના ઘરમાં જતા પહેલા વિચારે છે કે જોઈ લો મારા બેનના હાથમાં હાવણો તો નથી ને એને હાવણે આજે જોડી નાખવાના બેનો તૈયારીમાં છે। ભાજપ વાળા આજે કોઈના ઘરમાં જઈ શકતા નથી। ભૈયા ભાજપના ખાવાના છે, રૂપિયા ભાજપના વાપરવાના છે, ઝંડા ભાજપના છોડવાના છે, પણ મત હાવણાને આપવાનો છે। આ નક્કી કરીને બેહવાનું છે। ભાજપ વાળાને અત્યારે ઊંઘ નથી આવતી, ક્યાંય હુઈ નથી શકતા, કોઈના ઘરે જઈ નથી શકતા, એટલે તડકાના એસી માં બેહીને વિચાર કરે છે કે હવે કરવું તો કરવું શું। मनावा तो मनावा कोने। एक भाजपा नेता आता उभा से नाम लिए, ये खाली कैंडिडेट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की गुलामी से आजाद कराने वाले सिपाही हैं। ये भगत सिंह हैं। ये आने वाले समय के भगत सिंह के रूप में याद किया करूं से के नहीं बे हाथ ऊंचा કરીને क्यों કે પરિવર્તન કરવું છે, લડેંગે। તે વખતે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ધર્મ પ્રત્યે કીધું હતું કે મારે ભારતમાં કાંઈ નથી જોવું, મારે માત્ર ને માત્ર મનીષ સિસોદિયાનું શિક્ષણ મોડેલ જોવું છે। અને એવું વ્યક્તિ તો મિત્રો આપણી વચ્ચે હોય તો ઝવેરબેન પણ પધારી ચૂક્યા છે, સાથે રમેશભાઈ મેયર આપણા વિધાનસભાના રમેશભાઈ મેયર પણ સાથે પધાર્યા છે। તેમની સાથે બીજા મહેમાન 18 તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતના 3 છે। આપણા એક પણ ઉમેદવાર તૂટ્યા નહીં, એટલે આ ભાજપ સરકારની અને કોંગ્રેસ સરકાર જે મિલી ભગતથી એકાબીજા સેટિંગ કરીને જે સરકાર ચલાવવાનું જે કારસ્તાન 78 વર્ષથી ચલાવતા હતા, એ એમનો મનસૂબો આ વખતે કામયાબ નથી થયો। આ તકે આપણી વચ્ચે મહેમાનો પધાર્યા છે, આપણા દરેક ઉમેદવારો છે, એ બધાનું પણ હું સ્વાગત કરું છું। મને એની આપવીતી છે સમજાણી ઈ કે હવે હું ઘરે બહાર નીકળું તો મારો ભય હગો માને એવું નથી। હવે જેનો હગો ભય માને ન હોય, માને એવું ન હોય, એનું કાંઈ માને સમાજ બમાજ માને ગયો જોઈએ। હવે જેનું કાંઈ અસ્તિત્વ નથી, જેના ગુંડા તરીકેનું નામ છે, એવા લોકો જો આવી રીતે ચૂંટાશે તો આ સમાજનું કે આ વિસ્તારનું કાંઈ ભલું કરવાના નથી। ત્યારે આપણી વચ્ચે માનનીય આપણા મહેમાન મનીષ સિસોદિયાજી પધારી રહ્યા છે, ત્યારે આપણે જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવીએ। मेरा रंग दे बसंती चोला, આપણી વચ્ચે रंग दे बसंती चोला, मेरा દિલ્હીમાં જેને શિક્ષણની ક્રાંતિ, मेरा रंग दे बसंती चोला। આપણી વચ્ચે મુખ્ય મહેમાન પધારી રહ્યા છે। દરેક વ્યક્તિ એક વખત ઊભા થઈ અને જોરદાર એમને આહવાન કરશું। દરેક વ્યક્તિ આપણે ખુરશીમાંથી ઊભા થઈ જઈશું। આપણી વચ્ચે માનનીય મનીષ સિસોદિયાજી જેને શિક્ષણમાં ક્રાંતિ કરી છે, એવા મનીષ સિસોદિયાજી, સાથે જ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પ્રમુખ એવા મયુરભાઈ સાકરિયા આપણી વચ્ચે પધારી રહ્યા છે। તો એમને સ્ટેજ પર આપી આપણે એમને જોરદાર તાળીઓથી એક વખત સ્વાગત કરશું। પધારો સાહેબ, પધારો। બસ મારે હવે તમને કંઈ વધારે કહેવું નથી, પણ અહીંથી એક વાત કહીને જઉં છું કે એક મને વચન આપો કે આ વખતે આપણે કાંઈક પરિવર્તન કરશું। પરિવર્તન કરવું છે કે નહીં? બે હાથ ઊંચા કરીને કહો કે પરિવર્તન કરવું છે, લડેંગે લડેંગે। ખૂબ ખૂબ આભાર। જય જવાન, જય કિસાન। બાજુના તાલુકાના સાયલા તાલુકાના અને આપણા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના આમ આદમી પાર્ટીના આજથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને ડર છે। આ લોકો તો અહીંયા બેઠા છે પણ અત્યારે ભાજપ વાળા કોઈના ઘરમાં જતા પહેલા વિચારે છે કે જોઈ લો મારા બેનના હાથમાં હાવણો તો નથી ને એને હાવણે આજે જોડી નાખવાના બેનો તૈયારીમાં છે। ભાજપ વાળા આજે કોઈના ઘરમાં જઈ શકતા નથી, ભાજપ વાળા આજે કોઈ શેરીમાં નીકળી શકતા નથી। એ માત્ર ને માત્ર એક જ વાત છે, આજે બહેનોના હાથમાં હાવણો આવી ગયો છે ને એમને ખબર છે કે જો આ હાવણો વહામાં પીડ્યો
તો એ નિશાન છે એ કદાચ 2 પેઢી સુધી એમને નીકળે એવું નથી, એટલા માટે ક્યાંય જવા માટે તૈયાર નથી. ભાજપ વાળા જાય તો શું વાત કરે, છેલ્લા 30 વર્ષથી આપણે મત આપી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના અહીંથી નેતા મેકલા હોય, મત લેવાનો હોય ત્યારે વાતો એવી કરતા હોય કે મેં જીતી એટલે આ કરશું, ઘરે ઘરે પાણી આવશે, ઘર સુધી રોડ પહોંચશે, વાડીના રસ્તા બનાવશું. આ બધી વાતો હવે પોકળ થઈ ગઈ. દર વખતે આ ને આ એકને એક લોલીપોપ આપવાનો છે. હું દરેકને અહીંથી કહેવા માંગુ છું કે 30 વર્ષથી આપણને જે લોલીપોપ આપે છે, દર વખતે 30 વર્ષથી સ્વાગત કરીશું. ખૂબ સરસ, જોરદાર તાળી સાથે આપણે સ્વાગત. માતા કી મનીષભાઈ સિસોદિયાને આપણે મિત્રો સાંભળવાના છે, એટલે હું કઈ વધારે કઈ વાત નહીં કરું. પણ મિત્રો આજે આપણી વચ્ચે એવી વ્યક્તિ આપણી વચ્ચે મિત્રો આવ્યા છે. હમણાં મેં ચુડા તાલુકાના ચોકડી ગામે પણ વાત કરી હતી. મનીષભાઈ સિસોદિયા મિત્રો એક એવું વ્યક્તિત્વ છે કે ન માત્ર ભારત દેશમાં પણ સમગ્ર દેશમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે જેને મિત્રો ખૂબ મોટું નામ બનાવ્યું છે તેવું નામ આપણી વચ્ચે આજે મૂળી તાલુકાના કાકરાતળ ગામે મિત્રો પધાર્યું હોય. દિલ્હી રાજ્યમાં 2 ટર્મ મિત્રો શિક્ષણ મંત્રી રહ્યા હોય અને જ્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ હોય, અન્ય કોઈ દેશોના રાષ્ટ્રપતિ હોય, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ધર્મપત્ની જ્યારે મને આપણા દેશની મુલાકાતે આવતા હોય તો એને અન્ય આપણા દેશના વડાપ્રધાન એમ કહેતા હોય કે આવો તમને બીજી કોઈ પણ જગ્યા બતાવીએ. પણ મિત્રો તે વખતે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ધર્મ પત્નીએ કીધું હતું કે મારે ભારતમાં કાંઈ નથી જોવું, મારે માત્ર ને માત્ર મનીષ સિસોદિયાનું શિક્ષણ મોડેલ જોવું છે. અને એવું વ્યક્તિત્વ મિત્રો આપણી વચ્ચે હોય તો મનીષભાઈ સિસોદિયા માત્ર મિત્રો એકવાર જોરદાર તાળીઓ આપી. અને આજે ખૂબ મોટી મેદની જનમેદની જોઈ અને આજ મારી સાથી પણ બોલાય છે કે આજે આપણે જે ક્ષેત્રમાં છીએ આજે જોતા એવું લાગે છે કે આમ આદમી પાર્ટી હતી એની કરતા મિત્રો 2 ગણી બમણી થઈને ઉભરી છે. અને દરેક વિસ્તારમાં અત્યારે એમ કહેવાય છે કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સૌથી વધારે આમ આદમી પાર્ટી જો કઈ સીટો લાવવાની હોય તો મિત્રો મૂળી તાલુકામાં આમ આદમી પાર્ટીની તાલુકા પંચાયત મિત્રો બનવા જોઈએ. અને એવા આપણા બંને આગેવાનો કિશોરભાઈ સોળમિયા, અશોકભાઈ મકવાણા માટે મિત્રો એકવાર જોરદાર તાળીનો ગણતરી ઉડાવજો. ત્યારે આ તકે વધારે કઈ વાત નહીં કરું, પણ મિત્રો આપણા કડદા કાંડની સૌ લોકોને ખબર છે. એ કડદા કાંડમાં ખેડૂતોના વાહમાં જે ભરોળીઓ પડી હતી એનો એક ટીપાનો જવાબ જો ખેડૂતનો દીકરો હોય તો મિત્રો એક ટીપાનો જવાબ આજે મિત્રો 26 તારીખે મિત્રો આપવાનો. અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મળતિયા વેપારીઓ અને દલાલો અને નેતાઓએ જે બોટાદના હળદરમાં હુકમ કર્યો હતો કે જાઓ ખેડૂતોના આંદોલનને વીખી નાખો. પણ આ તકે હું મિત્રો કહેવા માંગુ છું કે અમારા વાહમાં જે એક દંડો માર્યો છે, જો અમારી માએ હવાસેર હૂંટ કાઢી અને ન જણ્યા હોય તો આગામી 26 તારીખે જો તમે ખેડૂતના દીકરા હોય તો તમારા ગામમાં ઓલું કમળનું ફૂલડું મિત્રો 0 જવું જોઈએ. 0 જશે કે નહીં? तो मित्रों तैरना है तो समंदर में तैरो, इस नदी नालों में क्या रखा है? अरे तैरना है तो इस समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है? अगर वोट ही देना है तो सच्चाई वाली इस आम आदमी पार्टी की निशान के झाड़ू के सावना निशा पर मित्रों मतदान करवानू. इस कमल और पंजे में क्या रखा है? આ સાથે મિત્રો હું મારી વાતને પૂર્ણ કરું છું, પણ મિત્રો જોરથી નારો બોલશું જે આપણા મુખ્ય આગેવાન આપણી વચ્ચે આવ્યા હોય અને એવો નારો બોલો કે સુરેન્દ્રનગરના ભાજપના નેતાઓની ખુરશી મિત્રો હલવા માંડે. જોરથી બોલો ભારત માતા કી જય, જવાન ભારત માતા કી વંદે
बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर रात तक यहाँ आसपास के सभी गांवों से आए हुए मेरे भाइयों बहनों, खास तौर से बगड़िया और खाकराला से आए हुए भाइयों बहनों, और मंच पर उपस्थित हमारी आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स, जिनमें जोयल बहन बैठी हैं, रमेश भाई बैठे हैं, मयूर भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बैठे हैं, धनु भाई राजपुरा जी, श्याम जी भाई, लाल जी भाई, रमेश भाई बैठे हैं, और आप सबके बीच चुनाव लड़ रहे हैं हमारे साथी जो आज आपके बीच एक कैंडिडेट के रूप में आए हैं। राजू भाई, अशोक भाई, गोपाल भाई, विहा भाई, किशोर भाई, वसंत बहन, अरुणा बहन, ज्योति बहन, जयंती भाई, महेश भाई, यूषा बहन, श्याम जी भाई, ये सब लोग, इतने लोग आपके सामने स्टेज पे बैठे हैं। इनमें से अशोक भाई, विहा भाई, किशोर भाई, ये सब लोग लंबे समय से आपके लिए लड़ रहे हैं। भाई लाल जी, रमेश भाई, ये सारे लोग, इतने लोग आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपके तालुका पंचायत के चुनाव के बारे में थोड़ी सी बात करने मैं तो दिल्ली से आया हूँ। मैं दिल्ली में लोगों ने डिप्टी सीएम बनाया मुझको। हमने 15 साल पहले एक नई पार्टी बनाई थी। पूरे देश में लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार से दुखी थे। 14-15 साल पहले हमने एक नई पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम था, क्या नाम था? आम आदमी पार्टी। हमने बनाई पार्टी दिल्ली में कि ईमानदारी से सरकारी स्कूल इन्होंने बर्बाद कर रखे हैं। इनके बच्चे तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ लेते हैं, आम आदमी के बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां अच्छे स्कूल नहीं बनवाते। ये हमने कहा अच्छे स्कूल बनवाएंगे, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई कराया करेंगे। जब हमने नई पार्टी बनाई थी 14-15 साल पहले, तो ये कांग्रेस बीजेपी वालों ने खूब मजाक बनाया हमारा। मैं जी न्यूज में पत्रकार था, एक टीवी चैनल है जी न्यूज करके, उसमें पत्रकार था। अरविंद केजरीवाल जी का नाम सुना है ना? अरविंद केजरीवाल जी अफसर थे, कलेक्टर वाले, इनकम टैक्स के अफसर थे। अरविंद केजरीवाल अफसर थे, मैं पत्रकार था। हम लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई कि ईमानदारी से काम करेंगे, सरकारी स्कूलों को अच्छा करेंगे, सरकारी अस्पतालों को अच्छा करेंगे, किसानों की मजदूरी ठीक से मिले, किसानों की मेहनत का पैसा मिले, इसके लिए काम करेंगे। किसानों को फसल का एमएसपी में पैसा मिले, इसके लिए काम करेंगे। हमने जब पार्टी बनाई तो कांग्रेस बीजेपी वालों ने खूब मजाक बनाया। ये 4 लड़के नए आए हैं, शौक पड़ा है इनको पार्टी बनाने का। इस देश में ईमानदारी की राजनीति नहीं हो सकती, इस देश में सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, इस देश में सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते। ये कांग्रेस वाले मजाक बनाते थे, बीजेपी वाले कहते थे ईमानदारी की राजनीति तो कोई कर ही नहीं सकता, किसानों की आवाज उठा के कोई राजनीति नहीं कर सकता। लेकिन भाइयों, हम इनके मजाक उड़ाने से हम घबराए नहीं, हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने दिल्ली में पार्टी बनाई और उसका फायदा दिल्ली की जनता ने पहले ही चुनाव में 2013 में पहले ही चुनाव में 70 में से 28 सीटें हमको दी और हमारी सरकार बनवा दी। फिर 2015 में दोबारा चुनाव हुआ, हमारा बहुमत से कुछ कम था। हमारी 50 दिन सरकार चली, 49 दिन 49 डेज की 49 दिन की सरकार में अरविंद केजरीवाल जी ने, हमने जितने काम किए, दिल्ली की जनता इतनी खुश हुई, बोले ऐसा काम तो हमने कभी किसी का देखा ही नहीं। तो 70 में से 2015 में फिर से चुनाव हुआ, 50 दिन बाद हमारी सरकार गिर गई। तो 50 दिन बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें दी। कभी इतिहास में इतनी सारी सीटें किसी को नहीं दी होंगी। 70 में से 67 सीटें देकर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। दिल्ली में 5 साल हमने खूब ईमानदारी से काम किया, मेहनत से काम किया, भगत सिंह के सपनों को सच करने पे काम किया, बाबा साहब के सपनों को, सरदार पटेल के सपनों को सच करने पे काम किया, हमने गांधी के सपनों को सच करने पे काम किया, अच्छे स्कूल बनवाए, सरकारी अस्पताल बनवाए। 2022-20 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो दिल्ली के लोगों ने फिर से हमें 70 में से 62 सीटें दिवा के जीती। ये मजाक बनाते थे हमारा ईमानदारी की राजनीति नहीं हो सकती। उसके बाद में जब दिल्ली में जीते
तो गुजरात तो पंजाब में भी हम 20 सीटें जीत गए, गोवा में 2 सीटें आम आदमी पार्टी के दे दी, लोगों ने बोले यार ये ईमानदार लोगों की पार्टी है। बाद में जब गुजरात में चुनाव हुआ, यहाँ के लोगों ने भी 5 सीटें दे दी, किसी कैंडिडेट को नहीं दी, बुरा मत मानना, ईमानदारी की राजनीति को वोट देते हैं लोग, किसी कैंडिडेट को वोट नहीं करते, उम्मीदों को वोट करते हैं। लोगों ने उम्मीदों को वोट की, 5 सीटें गुजरात के लोगों ने हमें दी, आम आदमी पार्टी को। इससे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी घबरा गए। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा लगता है गुजरात तो उनका गुलाम है, भारतीय जनता पार्टी वालों को लगता है गुजरात की जनता तो उनकी गुलाम है, उसको लूटेंगे, खसोटेंगे, उनके बच्चों को स्कूल नहीं बनवाएंगे, उनके लिए अस्पताल नहीं बनवाएंगे, किसानों को फसल का दाम नहीं दिलवाएंगे। लेकिन बीजेपी वाले बड़े बड़े महलों में बैठ के कहते हैं गुजरात के लोग तो हमारे गुलाम है, हमारे अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे। ये बीजेपी वाले हमेशा कहते हैं। तो जब बीजेपी वालों ने आम आदमी पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया तो बीजेपी वाले घबरा गए। इन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगा, इनको लगा कि ये ईमानदार लोग हैं, इनकी ईमानदारी पे चोट करो। जनता हमारे काम पे वोट करती चली जा रही थी, इन्होंने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया, बोले इसने शराब घोटाला कर दिया, झूठा आरोप लगाया। मैं कहता रहा झूठा आरोप है, लेकिन इनके पास मीडिया है, इनके पास पुलिस है, इनके पास सीबीआई है। इन्होंने मेरे को उठा के मेरे घर में रेड डाली। पूरी दिल्ली में लोग ईमानदारी की कसमें खाते हैं अरविंद केजरीवाल की, कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, मनीष सिसोदिया ईमानदार है। लेकिन इन्होंने मेरे घर में सीबीआई की रेड डलवाई, सीबीआई का छापा डलवाया इन्होंने। जन्माष्टमी के दिन मेरे दिल में भगवान कृष्ण बैठे हुए थे, मैं इंतजार कर रहा था कि फास्ट रखेंगे। हमारे घरों में चर्चा होती है मेरे भाई, जब जन्माष्टमी के दिन सबके होती है ना, घर में माँ बहन भाई बेटे सब चर्चा करते हैं कौन कौन फास्ट रखेगा, कौन कौन फास्ट नहीं रखेगा। सुबह 6 बजे बैठ के मैं अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा था, सीबीआई वाले मेरे बेडरूम में घुस आए, बोले तुम्हारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, तुमको जेल में डालेंगे, बाद में पहले घर की तलाशी लेंगे। मैंने कहा ले लो। उनको लग रहा था इतना बड़ा मंत्री है, कुछ ना कुछ तो होगा। उनको नहीं पता था कट्टर ईमानदार है। उन्होंने मेरे घर का कोना कोना छान मारा, तकिए फाड़े, मेरे गद्दे फाड़ के देखे, मेरे वाइफ मेरे कपड़ों की अलमारी देखी, मेरे बच्चों के कपड़ों की अलमारी देखी, मेरी वाइफ के कपड़ों की अलमारी देखी। मेरा दिल रोया कि मैंने किसी के चाय नहीं पी, आज मेरे दिन ये आ गए कि मेरे वाइफ के कपड़ों की अलमारी मेरे सीबीआई वाले छापा मार रहे हैं। लेकिन मैंने कहा भगवान सब देखता है। इन्होंने मुझे अरेस्ट करा दिया बाद में, 18 महीने इन्होंने मुझको जेल में रखा है, कोठरी में छोटी सी में, कि यह आदमी चोर है। लेकिन बाद में देश की सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बाहर निकाला और आज दिल्ली की अदालत ने कह दिया कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। उसी ईमानदारी के बाद आपके बीच में आया हूँ। मैंने स्कूल बनवाए, दिल्ली के बच्चों को पढ़ाया। ये कहते थे ईमानदारी की राजनीति नहीं हो सकती, हमने ईमानदारी की राजनीति करके दिखाई। ये कहते थे सरकारी स्कूलों में बच्चों का कोई भविष्य नहीं बन सकता, कभी भी सरकारी स्कूल कभी अच्छे नहीं हो सकते, हमने दिल्ली के करके दिखाए, पंजाब के करके दिखाए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल ऐसे हो गए, हमारी सरकार नहीं है अभी वहाँ, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक काम वाली का बच्चा, एक रिक्शा चलाने का वाले का बच्चा IIT और IIM में पढ़ाई कर रहा है, दुनिया के देश के सबसे बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाई कर रहा है, कई लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है वो। हमने दिल्ली में काम करा। दिल्ली में जो लोग एजुकेटेड हैं वो जानते हैं कि एक चीज होती है इनकम। जैसे एक गांव है, मान लो गांव में 100 लोग हैं, तो 100 लोग कोई 1000 रुपये कमाता है, कोई 1000 रुपये कमाता है, 20,000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, तो उसका एवरेज निकाल के, औसत निकाल के बनाते हैं कि इस गांव की औसत आय क्या है। वैसे ही गुजरात की भी निकालते हैं, दिल्ली की भी निकालते हैं। तो जब दिल्ली में हमारी सरकार आई थी तो दिल्ली का आम आदमी औसत 2 लाख रुपए कमाता था, लेकिन 10 साल में अरविंद केजरीवाल की मेहनत ने बच्चों को पढ़ा दिया, स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए। उसकी वजह से 10 साल में दिल्ली के लोगों की आमदनी 2 लाख से बढ़ के 5.5 लाख रुपए पहुंच गई। ये केजरीवाल की ईमानदारी की कमाई। और आपको आश्चर्य होगा, और आश्चर्य क्या बताइए आपको, आपके आसपास की बात है, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में। 30 साल से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए गुजरात में आज भी आम आदमी की औसत आय 3 लाख रुपए है।
अगर अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी 10 साल सरकार चला के 2 लाख से 2 लाख की आय को 5.5 लाख रुपए लोगों की करवा सकती है, इतनी आमदनी लोगों की बढ़वा सकती है, तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 30 साल से गुजरात में क्या कर रहे हैं? क्यों गुजरात के लोगों की आय 30 साल से 3 लाख पे टिकी हुई है, 2.5 लाख पे टिकी हुई है? और बात केवल आम आदमी की नहीं है, किसानों की। हमारी पंजाब में सरकार बनवाई, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत सरकार एक सर्वे जारी करती है। भारत सरकार का सर्वे कहता है कि पंजाब में जहां आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक किसान एवरेज हर महीने 26,000 रुपए कमा रहा है और गुजरात का किसान 12,000 रुपए महीने कमा रहा है। ये 30 साल में गुजरात के किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने ये दिया है। गुजरात के किसानों की कमाई नहीं करवाई, गुजरात के नौजवानों की कमाई नहीं करवाई, गुजरात के दुकानदारों की कमाई नहीं करवाई। किसकी कमाई करवाई? अपने दोस्तों की। किसकी कमाई करवाई? आपकी मेहनत का पैसा, मजदूरों की, नौजवानों की मेहनत का पैसा, जो नौजवानों की तनख्वाह में ज्यादा बढ़ के आना चाहिए था, बहनों की कमाई में आना चाहिए था, दुकानदारों की कमाई में आना चाहिए था, वो सारा पैसा इन्होंने अडानी के पास पहुंचा दिया, आपके पास नहीं पहुंचने दिया इन्होंने। ये लड़ाई इस पैसे की है, लड़ाई सरकार की भी नहीं होती है, लड़ाई तो पैसे की है। इस पैसे पे डाका डाला है भारतीय जनता पार्टी ने 30 साल। आज आपको बताने का दिन आ गया है कि गुजरात, सौराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं है, गुजरात भी आजाद है। आज मंच पे जो लोग बैठे हैं, इतने सारे कैंडिडेट के मैंने नाम लिए, ये खाली कैंडिडेट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की गुलामी से आजाद कराने वाले सिपाही हैं। ये भगत सिंह हैं, ये आने वाले समय के भगत सिंह के रूप में याद किया। હાલો હાલો હવે આપણે અત્યારે બધા ધીરે ધીરે પછી જમવાનું લઈ અને પછી આપણે બધા છૂટા પડશું. ચાલુ થઈ